evening to all. Respected speaker for the day, Ms. Sonali Jain ji from Delhi. Respected conveners cum moderators for the day, CA Neha Agarwal and CA Jagjit ma'am. Respected managing committee members present here. Respected members and my dear students. I, CA Sugam Saraivara, welcomes you all in the 5th day of our 12-day mega celebration of CA Day 2020. The 5th day is specially scheduled for the women of today, for the women of Jamshedpur, for the women of India, for the women of entire world. The tagline for today is Sita, Radha, Draupadi, and you. We all know that women always play a very big role in everyone's life. Not only theirs, but in our life too. So today's topic has been kept keeping in focus all the roles which a woman has to play during their lifetime. So we have three characters from different yugs, Sita Maiya, Radha, and Draupadi. So a woman has to play all the three characters during their life. Sita as a character in which they have to prove themselves every time. Being Radha as a symbol of sacrifice, and Draupadi as a symbol of strength, boldness, courage. हमें द्रौपदी से सीखने मिलता है कि अगर किसी औरत का सम्मान नहीं करे तो महाभारत जैसा युद्ध भी हो सकता है. सो हमें तीनों कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखने मिलता है एंड ये तीनों कैरेक्टर हर महिलाएं अपने पूरे जीवन में गुजरती है हर वक्त. सो इसी के लिए आज इस टॉपिक के लिए हमारे साथ दिल्ली से सोनाली जैन जी है, जो हमें और हम आप सभी को इस टॉपिक के बारे में बताएगी, समझाएगी कैसे हम लोग इस टॉपिक, ये जो कैरेक्टर्स है कैसे हम लोगों के लाइफ में है. सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हमारे ब्रांच के चेयरमैन सीए संजय गोयल टू काइंडली एड्रेस द गैदरिंग. संजय भैया, ओवर टू यू. Thank you, Sugam. A very good evening to all of you. Respected Speaker of the Day, CFC Sonali Jain ji. Respected Convener of the program, CA Jagjit Kaur ji and CA Neha Agarwal ji. And Student Convener Sanjana and Sana. Senior members, past chairmen and all the participants. And my managing committee members. It's my pleasure to welcome all of you in this virtual meet on the topic Sita, Radha, Draupadi and you. The speaker for this session is Srimati Sonali Jain ji. I heartily welcome you, ma'am. Thank you so much, sir. Now, friends, Sita, Radha, Draupadi and you. It's a very interesting topic. It is interesting that Sita has become the role model of most of the women, Indian women. And Draupadi is an interesting story, but she never really became a role model. Radha is happy with her unconditional love to Krishna. So Sita, Radha and Draupadi represents the earth, water and fire qualities respectively. We will discuss in detail about these qualities of a today's woman in detail with the speaker of today's, Sonali Jain ji. So I conclude here with these words: if you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman. Thank you. Over to Sugam. Thank you, Sanjay Bhaiya, for your motivational and inspirational words as always. So now I request our student wing secretary Sana Zafar to kindly introduce Sonali Jain ji. Thank you, Sugam sir. Over to Sana. Thank you, Sugam sir. Good evening, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to introduce our session speaker tonight, CFC Sonali Jain, who is going to talk to us about the women of today, Sita, Radha, Draupadi and you. Sonali Jain is nurturing the students pursuing professional courses like CA, CMA, MBA, MCA, etc. for over half a decade, specializing in fiercely difficult
theoretical subjects. She is a visiting faculty member and guest speaker at ICAI, Delhi. Also, a keynote motivational speaker for the youth, recognized as the best emerging faculty across Delhi NCR and also awarded as the best youth CA faculty. Recently, she has been awarded in National Education Conclave Integrated Chamber of Commerce and Industry. With a don't give up attitude and much more, she has gained the popularity in the name of Theory Queen. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Ms. Sonali Jain. Thank you, all of you. I think this is a very warm welcome. Very good evening to everyone. Before starting up with the session, I would thank the session chairman, the branch chairman, Secretary Sugam Saraiwala ji. And before commencing, I think Sugam sir is going to say something. Are you about to say something, sir? Yeah, ma'am. Just I think सबको 2 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा आपको सुनने के लिए. No, don't worry, sir. So before you start, I want our convener and moderator for today, CA Neha Agarwal, to say something on the topic. Over to you, Neha. Good evening, all of you. As we know, today's topic is based on Sita, Radha, Draupadi, and women. उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है. They were quite capable. But there are many things which they had to face difficulties in their life. So there are many things which we also can learn from them. To stable difficulties and take correct decision in our professional and life. One should mentally enough strong so that right decision could be taken. हम लोग सभी जानते हैं कि सीता जी, राधा जी और द्रौपदी इतनी मतलब उन लोग इतने कैपेबल थी, उनके बावजूद भी उनको इतनी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी. इवन अगर हम लोग आज के डेट में उनके जितने मेंटल स्ट्रांग भी हो जाए तब भी बहुत हम लोग को मोटिवेशनल स्पीकर, एक राइट स्पीकर, एक जो हम लोग को सही दिशा दिखा सके, उसकी भी बहुत जरूरत है अभी. वुमेन इन इंडिया हैव बीन एन इक्वली कॉम्पिटेंट workforce in all professional sectors. There is a need to address their requirements so as to maintain healthy balance between their professional and personal commitments. So I would like to hand over our speaker, Mrs. Sonali Jain, to motivate our women, professional and students all. और एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से और प्रोफेशनल से, अगर कोई भी क्वेरी हो और कुछ आप अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहती हैं तो प्लीज हैंड रेज करें और चैट में भी आप मैसेज कर सकती हैं. तो सोनाली मैडम प्लीज. Over to you, Sonali ji. Okay, thank you so much, sir. First of all, this is Miss Sonali Jain from Delhi, faculty ICAI. Good evening, everyone. Today is the very strong topic, that is the women of today. We can take this topic from our Indian mythology as well. Sita from the great Ramayana, right? Then Draupadi from the Mahabharata and so on. इस टॉपिक पे मैं अपने पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करना चाहूंगी, जरूर व्यूज अपने रखना चाहूंगी, बट साथ साथ मैं इस सेशन को कोई बोरिंग या मॉनिटरिंग सेशन रखना नहीं चाहती, एक इंटरैक्टिव सेशन रखना चाहती हूँ. If I'll start, before that I will just thank the branch chairman, Sanjay Goyal sir. This is nice meeting you today here on this session, and Sugam sir for giving me the opportunity for taking the session for today. Thank you. And I will welcome all the other chartered accountants and the CA students to this webinar. Hope this webinar will be an inspiration and will count in your life from now onwards. And I will also like to thank Sana for the great introduction of mine. Thank you so much. Welcome, ma'am. Thank you so much for coming. Thank you. Okay, so now
taking not much time, I would like to start with the thing like, if I talk about the younger generation of today, particularly the youth, they actually ignore the much of our Indian mythology, the importance of Indian god and goddesses, the देवी देवता. हम लोग अपना इतना अपने काम में बिजी हैं, इतना कुछ सोचते नहीं है. हमको लगता है यार ठीक है, हो गया, महाभारत होनी थी हो गई, रामायण होनी थी हो गई, ठीक है चला गया. But we forget the importance of the different characters of these many stories. तो आज हमें क्या करना है, आज हमें एक्चुअली बैठ के कैरेक्टर्स को पिकअप करके समझना है कि how those characters today in our modern era plays an eminent and vital role. हमें समझना है इस चीज को कि वो जो कैरेक्टर्स थे वो आज भी हम में मौजूद हैं, बस जरूरत है तो उनको पहचानने की. Now let me take this very much point. Let me just pull out an Indian women. Indian women, I should say Indian women is the aggregate of every character. She has every shades in her character. Whether it is in the form of spreading love, affection, in the form of Radha, doing sacrificing in the form of Sita, and yes, if the situation do demands, making herself as Draupadi, isn't it? हम शांत नहीं रह सकते हर टाइम, ठीक है, तो द्रौपदी का जो स्वरूप हमारे अंदर है वो भी हमें दिखाना पड़ेगा, बट व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड्स. तो आज हमें इस सेशन में इस चीज को पकड़ना है, द ग्रेट वुमेन्स फ्रॉम आवर इंडियन माइथोलॉजी, दैट दीज वुमेन्स played the vital role that in that era, but in our modern lives as well. I would take the silent heroine of Ramayana, that is Sita Maiya. I will pick her. And yes, I said the silent heroine of Ramayana. Why? Because silently she was going through many aspects of life. Patiently she was dealing every aspect of life. मैं आज के यूथ से पूछती हूँ, बैटल्स बहुत सारी होती हैं, दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, बट हम क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमारा रिएक्शन अजीब तरीके से करने लग जाते हैं. बट सीता वाज द साइलेंट प्लेयर ऑफ रामायण. यस, मैं बात करना चाहूंगी सीता की ग्रेटनेस के बारे में, जो कि हमें उनसे सीखना है. क्या ग्रेटनेस थी सीता जी में जो हम सीखे उनसे? बहुत ज्यादा. I will point the 3S. I will point the 3S from the character of Sita. First in itself, yes, you know that very well, sacrifice. Yeah. Second is the self-confidence, जो कि पूरे रामायण में उन्होंने ऐसे पहना हुआ था जिसको कि हम जितना सल्यूट करें उतना कम है. The self-confidence she used to have. Marvelous. And third thing was the strength, the inner strength. That strength maintained her in the complete era to be the women, to be the player, to be the silent heroine of Ramayana. अब अगर स्ट्रेंथ की बात चल ही रही है तो ठीक है, एक किस्सा सुनाती हूँ आपको रामायण से ही. आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा किस्सा ये है कि जब सीता मैया बहुत छोटी थी तो उन्होंने शिव धनुष को उठा लिया था. अगर आप लोगों को याद हो तो उन्होंने शिव धनुष को उठा लिया था, वो भी अपने एक हाथ से. माय डियर यंगस्टर्स, द सीए स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, जस्ट जॉट डाउन दिस पॉइंट. ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए की बन जाएगा आपके लिए. सीता मैया को नहीं पता था कि उनके अंदर कितनी ज्यादा पावर है कि वो ये कर सकती हैं, बट शी डिड दैट. सिमिलरली हम लोगों को समझ नहीं आता, हम लोगों को पता नहीं होता, वी आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट हाउ मच स्ट्रेंथ वी आर हैविंग इनसाइड अस. अ वुमन is having many more. Women is the pillar. Women, I should say, is that strength जिसके बारे में बात जितनी की जाए उतनी कम है. मैं अगर
इस किस्से को भुला भी दूं तब भी किस्सा मुझसे नहीं भूला जाता। क्यों? क्योंकि ये किस्सा बार बार मुझे याद दिलाता है कि जो सीए स्टूडेंट्स इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उन सीए स्टूडेंट्स को बार बार याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है कि वी हैव दैट स्ट्रेंथ इनसाइड अस, वी कैन क्रैक एनी एग्जामिनेशन, बी इट बी सीए। आपको अपनी ये इनर स्ट्रेंथ समझनी है बस एक बारी, और एक बार आपने समझी और फिर देखो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो इंक्लूडिंग योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आप समझो इस पॉइंट को, नो? और इसी चीज को मैं आगे लेते हुए सेकंड पॉइंट पे आती हूँ, अबाउट द सीता सैक्रिफाइसेस। Sugam ji said Sita is a symbol of sacrifice. Yes, he mentioned it right. Sita is the epitome of sacrifices. Throughout the battle, throughout the era, she made the sacrifices, whether to go with the Ram with in the Vanvas, that point of time, leaving the kingdom of Ram, etc., etc. Sacrifices के इतने एग्जाम्पल्स हैं हमारे माइथोलॉजी में, जितनी मैं बात करूं उतना कम। बट क्या सिखाते हैं वो हमें? क्या सिखाते हैं हमें कि एक विमेन को ये सारे सेक्रीफाइसेस आज भी करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करने होते, पर आज की विमेन्स कहीं ना कहीं डर जाती हैं, सहम जाती हैं। बट क्या सहमना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, हर एक इंसान सीता मैया है, उसके अंदर वो कैरेक्टर है, तो क्या उसको डर के रहना चाहिए? नहीं डर के रहना चाहिए। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आई वुड लाइक टू प्रेजेंट few lines. The women participants here, please do listen. The women, the girls, the students here, please do listen this. ध्यान से सुनिएगा। नारी तुम कमजोर नहीं, नारी तुम कमजोर नहीं हो, बहुत स्ट्रांग हो। नारी तुम कमजोर नहीं, तुम बहुत स्ट्रांग हो। नारी तुम ताकत, तुम प्रबल हो। नारी तुम ताकत, तुम प्रबल हो। क्यों नहीं पहचानती अपनी शक्ति को? क्यों नहीं पहचानती अपनी शक्ति को? तोड़ो बेड़ियां और उठाओ अपनी भक्ति को, तोड़ो बेड़ियां और उठाओ अपनी भक्ति को। तो इसका मतलब क्या है? हर नारी में शक्ति है, बट उसे पहचानने की बस जरा सी चूक आप लोग कर चुके हो, जो कि अब आपको इस सेशन में समझने मिलेगा। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर दैट यू हैव टू पिक फ्रॉम द डिफरेंट माइथोलॉजीज, नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, टेकिंग द सेशन फॉरवर्ड, आई होप आपको बोरिंग नहीं लग रहा होगा। संजय जी, आर यू लिसनिंग? Yes, we are listening and it is very interesting. You carry on. Thank you so much. Or I was talking about the sacrifices, and thereby I had the word the fighter. Yes, Sita in itself was a great fighter. She fought till end. चाहे दो बच्चों की अपब्रिंगिंग हो, उसके अपने ट्विंस लव एंड कुश, चाहे अपनी जिंदगी अकेले बिना हस्बैंड के आफ्टर द बैनिश फ्रॉम द अयोध्या, चाहे कोई भी मजबूरी रही हो, शी वॉज इंडीड अ ग्रेट फाइटर। उनकी फाइटरशिप के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में हैं। हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है, हमारे पास भी पल पल ये प्रॉब्लम्स आएंगी, पल पल ये डिसीजन लेना पड़ सकता है हम लोगों को भी कि क्या चूज करें। क्या हम भी राम की तरह वनवास जाएं अपनी लग्जरी छोड़ के, या हम क्या करें? वी हैव टू चूज इन आवर प्रोफेशनल लाइव्स एज वेल। ये डिसीजंस हमें भी लेने पड़ते हैं, हमें भी इन चीजों को अपनी जिंदगी में फाइट करना पड़ता है। कैसे फाइट करें? टेक द थिंग्स फ्रॉम सीता's कैरेक्टर। This is the main point. Not taking thing onward. फाइटर तो वो थी, फाइटर हो गए, हम भी फाइटर हो गए भाई, ठीक है। बट फाइटर में रहने के प्रॉब्लम क्या आती है? When you are fighting something, you actually loses the patience. You actually loses the positivity. हम क्या चाहते हैं? दुश्मन को तराश दे, गोली से उड़ा दे, जीत हमारी हो। बट क्या सीता ये चाहती थी कि जीत ऐसी हो जिसमें हमें भी रावण के कैरेक्टर में देखा जाए? नहीं। She fought the battle with the patience, with the positivity. वो चाहती तो वो नेगेटिविटी का शिकार हो सकती थी जब उन्होंने
जब उनका हरण हुआ, रावण ने उनका हरण किया, बट नहीं, शी फॉट द बैटल लाइक अ पॉजिटिव लेडी। हमारे को आज कुछ दिक्कत हो जाए, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट हमारे एनवायरनमेंट में हमारे अराउंड हो जाए एंड वी बिकम होपलेस, हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, हम कहते हैं आए हमारे सामने गोली से उड़ा देना है हमने। दिस काइंड ऑफ नेचर इज देयर nowadays in the women, but from Sita's character we get to know the fighting spirit can be done patiently, the victory can be done with this way, with the positive manner as well. नेहा जी, आप सुन रही है इस चीज को? आप बताइए, बिल्कुल सही बोला मैंने या कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? आपका आई थिंक माइक म्यूट है। हाँ मैम, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। अब आप बताइए। मैम बहुत सारी चीज है, जैसे मेंटल स्ट्रेस भी अपने लोग को बहुत ज्यादा होता है आजकल वुमेन को, क्योंकि जो प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ है दोनों को अच्छे से ये करना होता है। तो मैम इस पे आप कुछ सजेशन दीजिए कि रॉन्ग डिसीजन ना लिया जाए, जो आजकल हो रहा है, सुसाइड वगैरह भी हो रहा है बहुत काफी। हाँ, दिस इज द पॉइंट। यही हमें सीता से देखने को मिलता है कि जैसे मैं विक्ट्री की बात करूं, अब जो सीन था कि रावण उनको हरण करके ले गया, ठीक है, वो चाहते तो एक एब्सर्ड वे में, एक गलत तरीके से विक्ट्री हासिल कर सकते थे, बट राम एंड सीता वांटेड कि राम जी आए और उनको हरण करके नहीं, उनको एज अ विक्ट्री, एज अ लॉर्ड लेके जाएं। दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। हम लोग चाहते हैं सक्सेस अचीव करना, हम लोग चाहते हैं हमें विक्ट्री चाहिए, हमें A1 आना है, हमें सब कुछ आना है, बट पाथ क्या चूज करना है? वो पाथ हमें सीता का कैरेक्टर, वो पाथ हमें रामायण में देखने को मिलता है। मैम वन मोर थिंग, या जो द्रौपदी थी, अगर उनका हम लोग देखें तो उस हिसाब से तो जो चारों पांडव थे उनको तो वनवास ही चले जाना चाहिए था, बाकी चार को। I will come to Draupadi some time later, but yes, of course. Chalo, theek hai, okay. So now, taking one more important aspect from the character of Sita is that she was indeed the first single mother from our Indian mythology. आज हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं ये सह लूंगी, पता नहीं सोसाइटी क्या कहेगी, मेरा हस्बैंड ये कर रहा है, मैं आवाज नहीं उठा पा रही, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे करूंगी। बट अगर हम रामायण में जाएं तो सीता ने एक्चुअली बहुत कुछ सरल कर दिया हम लोगों के लिए। जब राम जी टेंस थे कि मैं डिसीजन में क्या करूं, लोग कह रहे हैं कि सीता जी की चैसिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है, प्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है, तो सीता जी ने क्या बोला? सीता जी ने बोला कि मैं नहीं चाहती कि लोग इस बारे में चार बातें बोलें, मेरे स्वामी के बारे में चार बातें बोले, इस किंगडम के राजा के बारे में चार बातें बोले, मैं आपका ये चीज आसान करके मैं खुद ही चली जाती हूँ वाल्मीकि आश्रम, राइट? तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज वेरी मच करेजियस पार्ट, एंड देन the birth of the twin sons, उन्होंने उनकी अपब्रिंगिंग अकेले करी। द मार्वेलस थिंग, ये चीज सीखने वाली है। स्टैंड अप बाय योरसेल्फ, स्टैंड अप फॉर योर चाइल्ड। डरना नहीं है, वी हैव टू बी वेरी करेजियस इन दैट, वी हैव दैट स्ट्रेंथ। मैंने बताया वो इंसिडेंट्स, बचपन में ही उन्हें धनुष को उठा लिया, फाइन, इसका मतलब बचपन से हमारे अंदर वो स्पिरिट है, वो भावना है लड़ने वाली, वो करेज है, वो स्ट्रेंथ है। व्हाई डोंट वी रियलाइज दैट एंड कीप इनटू बैटल? हम उसको क्यों नहीं रखते? एंड दैट टू विद द सेंस ऑफ पॉजिटिविटी, विद द सेंस ऑफ पेशेंस। मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ से एक चीज शेयर करूं तो बीइंग अ वुमन, सीरियसली I have to fight a great battle to reach here. I know this is not a great thing, but for myself this is a very big achievement. I am speaker now, fine, but don't you think as a woman I have to fight a lot many things? Yes, I have to, but with the courage of mind and I should say the positive people around me, and I should thank Sugam ji and Sanjay ji for giving the opportunity for a women to speak to other women's on this particular topic. This is indeed a very great blessing.
मैंने भी बहुत ज्यादा करेज से, बहुत ज्यादा मेहनत से ये चीज करी, और मैं आगे आने वाले विमेन्स को, जनरेशन को यही बोलती रहूंगी, that courage is to be used to the fullest. And जब बात यूज की आती है ना, तो मैं एक सेइंग जरूर बोलूंगी, कोई यूज करे हमें तब तक चलता है, बट ध्यान रखना बस कोई मिसयूज ना कर ले। बहुत बड़ी बात है, कोई यूज कर रहा है तो ठीक है, बट अगर कोई मिसयूज करे तो गलत बात है। आवाज उठाओ और उसको लड़ो, यू हैव दैट स्ट्रेंथ। मैं और एक बात बोलना चाहूंगी कि व्हाई डोंट वी वुमेन कम टुगेदर एंड फाइट दिस टुगेदर। Once I was there in the women conference in this Delhi only. There after the conference, what was there? Everybody, every participant, every women participant, they made a WhatsApp group. Very small thing, but having greater importance. They made a WhatsApp group for what? Not for chit chat, my dear friends. Not for chit chat, but for what? For sharing the knowledge. कोई मैसेज डालेगा, यार ये वाली रिटर्न फाइल करनी है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी वुमेन उसका रिप्लाई करेगी। इंटेग्रिटी। फिर कोई डालेगा, मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, इसको कैसे करना है। थर्ड पर्सन डालेगा, मैंने ये चीज करी, मेरी ये फाइंडिंग्स है, आप लोगों को दिक्कत आएगी तो आपको यूजफुल हो जाएगा। देखिए, वुमेन इज हेल्पिंग अनदर वुमेन with the help of internet, with the help of like various platforms. Women can make India, women can make internet the strength. You just have to pick up your mobile phone, no? And this is your strength. आपको जो नहीं पता है आज की डेट में, आप मोबाइल फोन उठाइए और आपको सब चीज मालूम पड़ जाएगी। कमजोरी किस चीज की है तो फिर सब में होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही खाली कमजोर है, बट हमें वो करेज रखना है अपने अंदर कि वो कमजोरी को ओवरकम करना है। हमें वो कमजोरी ज्यादा नहीं कर दिखानी है, हमें तो बैटल फाइट करनी है विद द सेक ऑफ पॉजिटिविटी, राइट? ओके, चलो। सो अब हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट character, the strongest character from our Indian mythology. And if I say the strongest character, it will be none other than the Draupadi, right? Draupadi from Mahabharata. द्रौपदी तो बड़ी लड़ाकू थी। हाँ भाई, द्रौपदी ने तो भाई बड़ी कड़ी कड़ी बातें बोली हैं। हमें ये सीखना चाहिए। द्रौपदी ने तो एल्डर्स की भी शान नहीं रखी, क्या हमें ये सीखना चाहिए? My dear friends and colleagues, she fought. Yes, she was rebellion in nature. जानती थी वो कि वो फाइटिंग स्पिरिट से लड़ रही है, जानती थी वो कि वो एल्डर्स के अगेंस्ट जा रही है, जानती थी वो कि वो अपने लव्ड वन से कहीं ना कहीं दूर जा रही है, बट क्यों लड़ी? फॉर द जस्टिस, फॉर द वैलिड पॉइंट। तो हमें द्रौपदी के नेचर से क्या मालूम पड़ता है कि लड़ना कब चाहिए? जब पॉइंट क्या हो? वैलिड। ये नहीं कि द्रौपदी का नेचर उठाया कि भाई नहीं, शब्दों से खेल जाओ और ये कर दो वो कर दो, बट नहीं, मेन पॉइंट क्या था कि मुद्दा वैलिड होना चाहिए। शी फॉट फॉर द राइट कॉज। सो जब भी हम लड़े तो द कॉज शुड बी वैलिड। नो? संजय जी बोलना चाहेंगे कुछ? यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब आप बताइए कि फाइटिंग स्पिरिट से आपको, लाइक द्रौपदी की फाइटिंग स्पिरिट से आपको क्या लगता है? like impact on Indian women today should have or not? It should have impact on Indian women and they should go for the justice. मतलब ये जो पॉइंट सही है तो उस पे उसको अडिग रहना चाहिए, उस पॉइंट पे उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। Right. The very this thing is very well said. संजय जी ने बिल्कुल सही बोला। अपने पॉइंट पे अड़े रहो, जब पॉइंट वैलिड लगे पीछे मत हटो। This is the thing we have to take from the character of Draupadi. One more aspect
मुझे लगता है कि एक जो द्रौपदी का ये रेबल नेचर था, अगर मैं इसको साइड रखूं तो एक उनकी छवि दूसरी भी है, और वो छवि से मैं आप लोगों को ज्ञात करवाना चाहूंगी कि वो छवि क्या है. दैट छवि फॉर मी इज द पेशेंस. द्रौपदी ने कहीं ना कहीं मुझे, हम सबको आई थिंक पेशेंस भी सिखाया. डोंट यू थिंक जो भी उनके साथ हुआ, वो जानती थी कि कौरवस बहुत ज्यादा है नंबर में, वो जानती थी कि बैटल जीतना मुश्किल है, बट टिल द एंड शी वाज इन द पेशेंट मोड. ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला कि नहीं भाई अभी करो जो करना है अभी करो, नहीं. शी वाज वेरी वेल पेशेंट throughout. Also, one more aspect of Draupadi, that she knew everyone is not supporting. ध्यान से सुनिएगा. Everyone is not supporting, but still she wanted to fight the battle. Yes, one battle she was going from inside, because something has happened to Draupadi which नहीं होना चाहिए था. एक बैटल वो अंदर से भी जूझ रही थी और एक बैटल वो बाहर भी लड़ रही थी. और आज की विमेन को भी मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जब उस टाइम में उन्होंने ये बैटल्स जीत ली, तो आज की वुमेन क्यों नहीं. और मैं एक बात बताऊं, करती आज भी है, पता नहीं होता, बस जान लो कि तुम कर रहे हो. मेक श्योर दैट यू नो अबाउट योर पावर्स. एक चीज बोलना चाहूंगी, ए द्रौपदी इस कलयुग में कोई कृष्ण नहीं आएगा तुझे बचाने, तुझे स्वयं ही कृष्ण बनना पड़ेगा. इस बात को ध्यान से समझिएगा. बिल्कुल, आपको इस कलयुग में कोई बचाने नहीं आएगा, आपको स्वयं का कृष्ण बनना पड़ेगा, आपको स्वयं की रक्षा करनी पड़ेगी, स्वयं से इस बैटल को जीतना पड़ेगा. तो मेरे को तो ये लगता है कि द्रौपदी ने मुझे इतनी सारी स्ट्रेंथ दी है टू फाइट फॉर द राइट कॉज. और मैं सभी जितने भी मेरी विमेन फ्रेंड्स प्रेजेंट ओवर हियर है, सभी से मैं ये बोलूंगी, मेक अ ग्रुप. Yes, we are together. We will fight for every cause together. जो भी मुश्किलें आई हम उनको साथ लड़ेंगे. कृष्ण जी को छोड़िए, कलयुग की बात है, हम यहाँ बैठे हैं, हम साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे with the sense of patience, with the sense of positivity, and with the help of the people, with the help of the positive people around us. Right? संजय जी बहुत गौर से सुन रहे हैं, आप बताइए. संजय जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे कि द्रौपदी के केस में पांडव कई जगह पे गलत थे, तो द्रौपदी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, राइट पॉइंट ऑफ रखा, उससे उसने लड़ा, लेकिन उनका साथ अंत तक नहीं छोड़ा. शी वाज देयर टिल एंड, और वो उनके साथ खड़ी रहे. भले वो गलत थे पांडव, बहुत जगह उनके साथ उन्होंने गलत किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़कर उसके साथ कंटिन्यू रही वो. ये दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ द द्रौपदी. आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि आज के टाइम में भी ऐसा ही होता है कि हमें खड़ा तो हो जाना है, बट हमें शायद डिफरेंस मालूम नहीं होता कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड वी जस्ट स्टैंड अप. बट वही चीज वहां पर हुई कि शी स्टूड बिसाइड एवरीथिंग. राइट सुगम जी बताइए. Some words on Draupadi, yes, the strength of Mahabharata. नहीं, सुगम जी इज अनमैरिड नाउ, इसलिए वो बता नहीं पा रहे होंगे. तब भी महाभारत तो अभी रिसेंट में देखी है, लॉकडाउन पीरियड में. हाँ, तो द्रौपदी जी का एक बहुत अच्छा था कि उनको पता था कि अगर ये युद्ध होता है, अगर धर्म की स्थापना होती है, तो उन्हें अपने बच्चों को खोना पड़ेगा, बच्चों का बलिदान देना पड़ेगा, अपने परिवार का बलिदान देना पड़ेगा. बट वो सब वो एक्सेप्ट करती है एंड धर्म की राह पे चलती है. ये एक बहुत बड़ा चीज है जो उन्होंने किया, जो बहुत टफ है किसी के लिए भी करना. राइट.
Rightly said. बस अभी अनमैरिड में मैं इतना ही बता सकता हूँ, बाकी तो बाद में. Okay, I would request Yogesh ji also to contribute something, some lines on the same. या मैम, जैसे कि मैंने बोला, द्रौपदी सिंबल ऑफ परसिवरेंस. उनको मालूम था कि इतने सारे चैलेंजेस है. उनके जो हस्बैंड है वो भी शायद सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे. युधिष्ठिर जैसे कि धर्म के नाम पे गलत काम कर रहे थे, गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हुए. Right. बट फिर भी उन्होंने सब चीजों को समझा, और उन्होंने जो कृष्ण जी की जो सबसे अच्छी सीख की, धर्म की स्थापना के लिए हमें कई बार बड़े चैलेंजेस लेने होते हैं, बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है. तो आज की जो वुमेन्स है उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर आप राइट हैं तो आपको वॉइस रेज करना होगा, डिस्पाइट अगर आपका फैमिली भी अगेंस्ट है तो भी. हाँ, वेरी मेन पॉइंट. आपने बहुत बड़ी बात बोली, डिस्पाइट द फैमिली, है ना, चाहे फैमिली साथ में हो कि नहीं. और ये चीज द्रौपदी ने राइट हमें सिखाई. अगेंस्ट ऑल द एल्डर्स, अगेंस्ट ऑल द लव्ड वंस, गुड, राइट. एंड आई थिंक ये हमारे अंदर आज की लेडीज में, आज की विमेन्स में ये चीज आनी चाहिए कि आपको कोई लगता है ये चीज सही है तो आप उसके लिए बात करो, ठीक है. और मैं ये भी बोलूंगी, कहीं ना कहीं जब हम मैं बिल्कुल मॉडर्न एरा की बात कर रही हूँ, अपने आज के टाइम की बात कर रही हूँ. समटाइम्स बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ ह्यूमन, हम लोग नहीं डिसाइड कर पाते कि ये चीज वैलिड है या राइट है या रॉन्ग है. मैं अपना एक परसेप्शन रखूं तो देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग. अगर मैं मिस्टर ए का व्यू देखूं तो उनके लिए राइट होगा, मैं मिस्टर बी का व्यू देखूंगी तो उनके लिए शायद वो चीज अलग एस्पेक्ट की होगी. तो मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ कि देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग, इट्स ओनली द परसेप्शन दैट वेरीज. सो अगर आपको लगता है कि आपका परसेप्शन में दम है, ठीक है, तो एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग कन्वर्सेशन विद द सेकंड पर्सन. आप अपनी बात को सेकंड पर्सन से शेयर कीजिए, थर्ड पर्सन से शेयर कीजिए, सबसे शेयर कीजिए, ताकि आपको लगे, आपको मालूम पड़े कि यस, मेरे परसेप्शन में दम है एंड यस, आई शुड स्टूड बिसाइड दैट. मिस्टर गम से बिल्कुल अटेंटिव हो गए सेशन में. आप इतना अच्छा कोरिलेट कर रही है, सबके अटेंटिव होना पड़ रहा है. सर देखिए, टीचर की क्वालिटी है. Student have to be active all the time, otherwise the session will be very boring. एकदम डेफिनेटली. क्या कर सकते हैं, बोरिंग सेशन तो नहीं रखना है, मुझे तो इंस्पायर करना है, मुझे तो कुछ बताना है. और मैं आई थिंक बहुत, आई एम वेरी यंग टू स्पीक ऑन दैट, बट यस, मैं ये चीज भी दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ. इफ आई एज अ यंग वुमेन कैन कोरिलेट माई सेल्फ फ्रॉम द ग्रेट कैरेक्टर्स ऑफ द इंडियन माइथोलॉजी, व्हाई कैन नॉट यू? आज ही से इन चीजों को समझ लिया तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ना. सीता के कैरेक्टर को समझ लो, विक्ट्री कैसे हासिल करनी है समझ लो. विक्ट्री की अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट मेरे दिमाग में आता है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये सभी के लिए है. राम जी ने जब जीत हासिल कर ली तो वो चाहते तो रावण की लंका में अपना डंडा, अपना फ्लैग लगा के अपनी प्रजा बना सकते थे. नहीं किया उन्होंने गद्दी किसको दी? Can anyone tell me? उन्होंने वो गद्दी किसको दी? विभीषण को. Yes. विभीषण को. Right. वो चाहते तो वो अपना डंडा, अपना फ्लैग लगा सकते थे, अपनी प्रजा बना सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया. जिससे कि हमें ये सीख मिलती है कि the war was not for the seat. The war was not fought for the sake of gaining some property, but the war was for the aspect that उनको अपनी loved one, अपनी सीता वापस चाहिए. That's it. मुझे तो इस चीज से बहुत अच्छी सीख मिलती है. मैं मेरे स्टूडेंट्स को, मैं सब लोग को ये बोलती हूँ, विक्ट्री हासिल करो, बट विक्ट्री हासिल करने का जो पाथ है वो बहुत सही चुनना. ऐसा नहीं कि विक्ट्री हासिल करने के चक्कर में कुछ भी कर जाओ और बाद में पछताना पड़े. कभी ऐसा नहीं करो. नो. सो नाउ हम लोगों ने आई थिंक द्रौपदी और सीता जी के बारे में बहुत कुछ समझा, जाना एंड बहुत कुछ शेयर किया. नाउ कमिंग टू दी third and the I think so the loving character, and this character is none other than Radha. Yes.
राधा के बारे में हम सब जानते हैं, शी वॉज अ ग्रेट डिवोटी टू कृष्णा, एवरीथिंग, शी लव्ड कृष्णा, एवरीवन नोस। बट मैम क्या सीखूं इससे? हम भी ऐसे प्यार करें किसी से? यस। देखो, प्यार खाली जरूरी नहीं कि आप किसी आपका एक ही रिलेशन से करें। वो प्यार के रिलेशनशिप के जो रूप हैं वो अलग हो सकते हैं। मुझे ये सीखने मिलता है कि अगर एक इंसान किसी से प्यार करता है तो वो प्यार इटर्नल रखो, वो प्यार बिना किसी मटीरियलिस्टिक तरीके से रखो, है दम। ये सीखने मिलता है राधा से। राधा जानती थी, मार्क माय वर्ड्स, राधा जानती थी कि कृष्णा कभी उनके नहीं हो पाएंगे, बट क्या ये सोचकर भी उन्होंने अपना प्यार कम कर दिया? नहीं। ये चीज हमें सीखने मिलती है कि राधा से हमें ये सीखने मिलता है कि हमें ये चीज समझनी है कि अगर तुम किसी चीज को बहुत प्यार से रख रहे हो, जरूरी नहीं कि वो चीज तुम्हारी होकर रहे, बट द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि आप उसको प्यार करना मत छोड़ो। आपके एफर्ट्स कम नहीं होने चाहिए। जो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनको कहना चाहूंगी, प्यार करते हो सीए करिकुलम से या प्यार करते हो सीए कोर्स से, अपने एफर्ट्स, अपना प्यार मत छोड़ो सीए कोर्स से। एक तरफा प्यार भले ही हो, नहीं छोड़ना हमें। जैसे कृष्णा ने बाकी गोपियों के बीच राधा को चुन लिया, उसी तरह आईसीआई भी तुम्हें बहुत सारे जनों में से तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के रहेगी। संजय जी बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं? वेरी ट्रू। आजकल की चीजों को कुछ ऐसे ही समझना पड़ता है सर, नहीं? और जब बात आई थिंक चल ही रही है इसकी कि मैम हम कंटिन्यूअस डिवोशन, डेडिकेशन रख रहे हैं, उससे क्या लाभ? हाँ, सीए की डिग्री मिलेगी, बट राधा को क्या लाभ हुआ? राधा के लाभ के बारे में आपको 2 पंक्तियां सुनाती हूँ, जस्ट एक मिनट दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। राधा के सच्चे प्रेम का यही इनाम है। क्या इनाम है? राधा के सच्चे प्रेम का यही इनाम है, कान्हा से पहले लोग रहते राधा का नाम है। माय डियर फ्रेंड, राधा का नाम पहले आता है, राइट? राधा श्याम, सिमिलरली सिया राम, और ऐसे ही होगा CAXYZ, नहीं? तो देखिए ये वो चीज है। हमें ऐसा करने से क्या मिलेगा? हमें ऐसा करने से ये मिलेगा, ये इनाम मिलेगा। ये लाइंस हमें ये समझा जाती हैं, ये लाइंस हमें बता जाती हैं। अपने एफर्ट्स को, अपने डिवोशन को अपने तरफ से जारी रखो, नो मैटर व्हाट हैपन, नो मैटर कि वो चीज आपकी हो या नहीं हो, आप अपने एफर्ट्स रखो, खुद ब खुद इनाम मिलेगा। योगेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ मैम, इसी तर्ज पे हम लोग अपना सीए का पढ़ाई किए। सीए फाइनल में हम लोग मानते थे कि सेल्फलेस लव करना है अपने सारे सब्जेक्ट्स के साथ। मतलब सीए फाइनल में हम लोगों का 8 सब्जेक्ट होता है, तो हम लोग सोचते थे हमारी 8 गर्लफ्रेंड है। तो हम लोगों का सारे सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, हर चीज को अच्छे से समझना है, पूरा फुल डिवोशन के साथ। राइट, यही चीज। तो एग्जाम का भी बर्डन लगा ही नहीं, एग्जाम लगा जस्ट पास करना है बस। This is the point I think to be noted by everyone, burden नहीं लगा। आज के टाइम में रिलेशनशिप्स को चलाना ना बर्डन ही लगता है। If I take the example of Indian youth, मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को बच्चे नहीं करने, मेरे को मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना, पता नहीं क्या क्या, बिकॉज वो शायद रिलेशनशिप्स बनाने से या चलाने से कतराते हैं कहीं ना कहीं। और अगर आपका जो रिलेशनशिप का मोटो है वो इटर्नल हो जाए, वो मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट आप उसके अंदर से निकाल दो, यू ड्रॉप आउट एवरी एस्पेक्ट एंड जस्ट डू इट वेरी कामली without any materiality, I think that would be the winning, that will be the victorious aspect, isn't it? नेहा जी कुछ कहना चाहेंगी? Yes, ma'am. Yeah.
और सीए मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, एक ऐसा प्रोफेशन है जो विदाउट एनी रिजर्वेशन और कोई भी कोटा इसमें नहीं है, सब अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी से ही बनते हैं। मैंने आज ही इसके ऊपर एक पोस्ट देखी थी. आई वाज स्क्रॉलिंग माय फेसबुक वॉल एंड आई जस्ट सॉ अ पोस्ट. एक बच्चे ने लिखा था, आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ ICAI. अगला बच्चा पूछता है, भाई हाउ कम? कहता है इस प्रोफेशन में नेपोटिज्म नहीं है. इस प्रोफेशन में हर एक को अपनी बैटल खुद फाइट करनी पड़ती है. एंड दिस इज राइटली सेड. जितने भी फेलो मेंबर्स, जितने भी लोगों से मैं मिली हूं, उन्होंने अपनी बैटल खुद फाइट करी है. राइट नेहा जी, ये कहना चाहती हैं आप? Yeah, ma'am. No reservation, no nepotism, nothing. The battle fought by themselves with the self-confidence, with the selfless love in their books as their girlfriends, etc. Right? I think we have CA Binod sir with us. Sir, you are hearing the session. Would you like to contribute a few words? हेलो. हेलो, नमस्ते सर. हाँ नमस्ते. आपका प्रोग्राम मैं सुन रहा था काफ़ी देर से. जी सर. और काफ़ी जो आपने राधा जी के बारे में, द्रौपदी के बारे में और सीता जी के बारे में बताया, वो मैंने उस तरह से लॉजिक से कभी सुना नहीं था. अभी तक तो जो सुन रहे थे वो एक कैरेक्टर के रूप में सुन रहे थे, लेकिन आज पहली बार पता लगा कि इनकी ये खासियतें भी हैं कि राधा जी निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है और बाकी जो हमारे दो कैरेक्टर हैं द्रौपदी जी और सीता जी, इन दोनों में एक सिमिलरिटी है कि दोनों ने अपने जो अपने बिना निस्वार्थ अपने गोल के लिए वो लगी रही, चाहे 14 साल का वनवास हो, चाहे 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास द्रौपदी जी को मिला हो. ये एक नई बातें आपसे सीखने को मिली है, काफी अच्छा लग रहा है. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. एंड अगर सर ने बात उठाई है सिमिलैरिटीज की, तो अगर सिमिलैरिटीज भी देखें हम द्रौपदी जी एंड सीता जी के अंदर, तो आई थिंक एक चीज सिमिलर थी, वेरी मेन फैक्टर, एंड दैट फैक्टर इज द फाइटिंग स्पिरिट. आज की विमेन ना जरा सा प्रॉब्लम आता है, नहीं हमें शादी के बाद कंटिन्यू नहीं करना, नहीं पापा क्या कहेंगे, नहीं ऐसा वैसा, नहीं पहले आता है बाकी कुछ बाद में आता है. बट्स देयर आर सो मेनी इफ एंड बट्स इन आवर लाइफ. बट अगर ये चीज मैं उनके कैरेक्टर में जाऊं और घुसूं और देखूं, तो उन्होंने आई थिंक टिल द एंड दे हैड दैट फाइटिंग स्पिरिट. आज की विमेन को ये सीखना होगा कि देखो, अगर तुम सोचो कि तुम्हारी जिंदगी फूलों जैसी होगी, बिल्कुल कोमल कोमल, एक चादर बिछी होगी बिल्कुल सही सही, एक चादर होगी बिना कांटों की, पेटल्स भरे होंगे पूरे, तो ऐसा नहीं होगा. होंगे बहुत से कंस, होंगे बहुत से पांडव कौरवास, होंगे बहुत से ऐसे लोग पता नहीं किस किस फॉर्म में. हो सकता है वो कोई नेता हो सकता है वो कोई अभिनेता हो सकता है वो कोई आपका सहपाठी हो, कोई भी हो सकता है. आपको तो खुद से इसको बैटल को लड़ना है, आपको अपनी जीत खुद ही सुनिश्चित करनी है, आपको वो बैटल खुद से लड़नी है. कोई फूलों में से कांटों को नहीं हटा सकता, बट आपको स्ट्रेंथ ही आपके विक्ट्री को आपको अचीव करवा सकती है. हम ये कहें कि भाई फूल से कांटा निकाल दो, नहीं, फूल की रौनक खत्म. रोज की बात कर ले हम, रोज तो ऐसे ही होता है. बट हम ये कहेंगे कि इतना सुंदर बनो, इतने अट्रैक्टिव रहो, इतने अच्छे पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में रखो
कि सब लोग आपके प्रति अच्छे रहे और आप सबके प्रति अच्छे रहो। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की विमेन को इस पॉइंट को नोट करना चाहिए। हो गया क्या? मेजर पॉइंट, एंड दैट मेजर पॉइंट इज, हमारी जिंदगियों में ऐसा कभी नहीं होगा कि मुश्किलें नहीं आएंगी। हमारी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा कि मुश्किलें नहीं आएंगी। हमारे अंदर की स्ट्रेंथ है वो जो हमें इन मुश्किलों से टकरा के लड़ना सिखाएंगे। हमें लड़ना है यार, हमें डर के नहीं बैठना है। और मैं अगर बात वुमेन्स को साथ में लेके चलूं, लड़ना है, मरते दम तक लड़ना है, और क्यों नहीं लड़े? जब उस युग में वो लोग लड़ गए तो हम अपने युग में क्यों नहीं? क्या हमारे अंदर सीता, द्रौपदी, राधा के कैरेक्टर नहीं है? बहुत है। अभी आपके ऊपर एक चाय का प्याला गिरा दिया जाए, देखो अभी रेबल नेचर आ जाएगा सामने। नहीं, अभी 2-4 बातें बोल दी जाए, नहीं आएगा? आएगा सामने। इसका मतलब कैरेक्टर्स तो हैं, समझते नहीं हैं हम उन कैरेक्टर्स को, यूज नहीं करते हम उन पॉइंट्स को अपनी रियल लाइफ में। माइट बी वी आर अनअवेयर ऑफ द वेरी मच फैक्ट। और एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि जितने भी हमारे इंडियन माइथोलॉजीज हैं, उन माइथोलॉजीज में हमें ऐसा लगता है कि राधा जी, आई थिंक नहीं, राधा जी के बारे में प्रॉब्लम है, राधा जी को कृष्ण नहीं मिले थे, राधा जी का वन साइड था, ये वगैरह वगैरह वगैरह। बट एक चीज जो राधा जी ने मुझे सिखाई वो ये थी, राधा जी ने जब तक कृष्ण जी पैदा नहीं हुए तब तक उन्होंने आंखें नहीं खोली। दिस वॉज द मेन पॉइंट। सुगम जी यस कर रहे हैं, इन्होंने ये पार्ट देखा है कहीं? यस, सुगम जी वुड लाइक टू शेयर समथिंग ऑन दिस। मैम राधा जी नाथ में भी देते भगवान लॉकडाउन में ये सब में टाइम पास हुआ है देखते हुए। तो अभी जस्ट रिसेंटली 2-3 महीना पहले देखा है, तो याद है ये मेमोरी अभी। यस मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, गोविंद सर है, सी गोविंद अग्रवाल, वो उन्होंने रेज हैंड किया है, उनको कुछ शायद डिस्कस करना है। या श्योर, गोविंद अंकल प्लीज बोलिए, आप जो बोलना चाह रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सोनाली जैन जी का बहुत बढ़िया स्पीच रहा हमको। धन्यवाद सर। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बढ़िया रहा आपका एक एक चीजों को एक्सप्लेन करना। जी सर, कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक के ऊपर? टॉपिक के ऊपर बोलने का विशेष नहीं है, आप तो बोले, वैसे तो हम भी बहुत देखे हैं, सब चीज को पढ़े हैं, समझे हैं, लेकिन आपकी बातें बहुत एनालिटिक रही, अच्छी रही। और मैंने ये जो आप बोले कि शांत रहना है, पॉजिटिव रहना, ये बहुत अच्छी बात है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। yes, so now we can continue, right? Neha ji, we can continue? Yes ma'am. Okay. So I think the session is being loved by the people, no? Sanjay ji, are you enjoying the session? Are you Yeah, actually? all are loving your session. All are understanding your session. And एक्चुअली में क्या है कि हर नारी के अंदर राधा, सीता एंड द्रौपदी तीनों ही कैरेक्टर है। किस समय किस कैरेक्टर को यूज करना है वो उनको समझना है, और ये सेशन उसी के लिए ही बनाया गया है। Right. मैं ये बोलूंगी, a woman has to go under many traumas, under many problems. But my dear friends, but my dear viewers, you have to make yourself a character the situation demands. In the starting, I said, आप लव की वो भावना रखिए इन द फॉर्म ऑफ राधा, आप सैक्रिफाइस की वो भावना रखिए इन द फॉर्म ऑफ सीता, एंड यस रेबेलियन नेचर भी रखिए इन द फॉर्म ऑफ द्रौपदी इफ द सिचुएशन डिमांड्स। व्हाई नॉट? मैं बताऊं, एक बहुत बड़ी बात है, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। वी आर एट द CIRC पॉइंट।
सेंट्रल रीजन की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा, आप सभी जानते होंगे अबाउट कैमिशा सोनी मैम. I think I should say Kamisha ma'am was the chairperson of the branch. Then CIRC, आप लोगों को पता होगा obviously. For a woman to fight in the election in itself is a very great thing. And then to come up with the victory at the branch level, the regional level in itself is marvelous. हर वुमन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वो एक पथ प्रदर्शक है. सब उसको फॉलो करते हो, सबको फॉलो करना चाहिए, उनसे सीखना और समझना चाहिए, जैसा कैमिशा सोनी जी ने किया है. जिस तरीके से आज जो चेयरपर्सन भी बन पाई बोर्ड ऑफ स्टडीज के, आज एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की चेयरपर्सन है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड में भी उनका काफी योगदान है. तो ये वुमेन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन है जो कि उनसे सीख लेनी चाहिए सबको. हाँ जी, जितने भी वुमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हमारे सेशन में, अगर आप कैमिशा सोनी मैम की जर्नी देखेंगे तो उनकी जर्नी कोई फूलों समान नहीं थी. उनकी जर्नी वाज फुल ऑफ स्ट्रगल्स. आप अगर उनसे जाके बैठेंगे, पूछेंगे, तो वो अपनी एक एक स्टोरी सुना सकती हैं. कितने कांटों से उभर के वो आई और बाद में एक फूल समान खिल के हमारे सामने आई. आज हम सबका सर उनके आगे झुकेगा. उन्होंने ये पद हासिल किया, बट हम अगर बोले हमें स्ट्रगल नहीं करना, कोई हमें करके दे दे, वो नहीं हो सकता. आपको खुद लड़ना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी. कैमिशा मैम ने भी समझा, हमें भी समझनी पड़ेगी. नेहा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैम, प्रोफेशनल ये में हम लोग को बहुत सारा फेसेस करना पड़ता है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर फीमेल कैंडिडेट को एप्रिसिएशन मिले या कुछ होता है तो सीधा एक चीज बोले जाती है, मे बी सी हैज प्लेड वुमन कार्ड. लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है. तो आप ऐसा क्या मतलब अपने जो यंग सीए मेंबर है जो फीमेल, उनको मोटिवेट करने के लिए या फिर मेल कैंडिडेट्स को कुछ सजेशंस मैम आपके तरफ से? मैं इस चीज में तो मैं सजेशन से पहले आई वुड रियली थैंक Sugam ji, Sanjay ji being the male candidate to opt for a women candidate for taking such session. I'm glad. No, they are supporting. Okay, so they are supporting us also even. मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, this हम नहीं इस चीज को इग्नोर कर सकते कि विमेन्स को कैपेबिलिटी के दम पे नहीं, उनके जेंडर के दम पे कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं दो बातें जाती हैं. पहले ही उसके अंदर कैपेबिलिटी हो ऊपर आने की, बट स्टिल द बैक, एट द बैक, द पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट शी मस्ट हैव प्लेड द वुमेन कार्ड. बट मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, अगर किसी विमेन ने विमेन कार्ड प्ले किया है, चलो, तो आपको उसकी कैपेबिलिटी मालूम नहीं पड़ जाएगी देखते ही. यू विल गेट टू नो. इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, एक विमेन कैंडिडेट अगर आगे उभर के आती है तो वो अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी के बल पे आती है. और मैं ये कहना चाहूंगी, जो आपने मुझे बोला नेहा जी कि मैं मेल कैंडिडेट को क्या बोलूंगी, इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज जैसे आपने फीमेल कैंडिडेट वुमेन को सेलेक्ट किया फॉर द सेशन, कुडोज टू यू. जैसे आपने आज बहुत सारी विमेन्स को एकत्रित किया, बहुत सारी विमेन्स को ये प्लेटफॉर्म दिया, अगर हमारी सोसाइटी के सारे मेल कैंडिडेट्स, यस मार्क माय वर्ड, सारे मेल कैंडिडेट्स ऐसा करने लग जाएं तो वुमेन को इस वुमेन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी. बातें खत्म हो जाएंगी जिस दिन मेल कैंडिडेट, अगर वुमेन में कैपेबिलिटी है, उनको चांसेस देना शुरू कर देंगे. तो तभी मैंने कैमिशा सोनी मैम का नाम लिया था कि उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा ये चीज. एंड अगर मैं बात करूं, वन मोर लेडी like Delhi is in NIRC, and if I talk at NIRC level, in NIRC we have one more chartered accountant, Shweta Pathak ji.
उन्होंने भी फाइट करके इलेक्शन, शी वॉज इन द मैनेजिंग कमेटी। तो आसान नहीं है लड़ना, पर लड़ना पड़ेगा। एंड मैं हर बार सबको ये बोलती हूँ कि अपनी कैपेबिलिटी के दम पे आगे आ जाओ। अगर वुमेन कार्ड प्ले भी कर लोगे, अगर सबको लगेगा कि वुमेन कार्ड प्ले किया है, तो आ जाओ, कैपेबिलिटी देखो हमारी, टेस्ट अवर कैपेबिलिटी, वी आर नो मोर लेस। संजय जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा? नहीं, आप एकदम सही जा रहे हैं। जी सर। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई आज की सोसाइटी मेल डोमिनेटेड रहेगी, बट ये आपको डिसाइड करना है। आपको जाके सोसाइटी चेंज नहीं करनी है। वुमेन्स के लिए मैं ये बोलूंगी, आप खड़े हो, आप बोलो कि नहीं हमें सोसाइटी चेंज करनी है, आओ एक नारा लगाएं, आओ एक हैशटैग बनाए कि नहीं चेंज सोसाइटी, हमारे मेल कैंडिडेट्स को चेंज करो, उनकी थिंकिंग चेंज करो। नहीं, अपना रास्ता बनाओ कि आप उस सोसाइटी में अपना रास्ता निकाल के कैसे आप एक लेवल पे पहुंच के फिर आप अपने साथ वुमेन कैंडिडेट्स को जोड़ के फिर आप जो कर सकते हो ना, दैट विल बी द मेजर चेंज। नेहा जी, आप कुछ बोलने वाली थी? नहीं मैम, बस यही था। So this is the point to be noted from the Indian mythology, that we have many characters of the women, be it Radha, be it Sita, be it Draupadi. I pick any one of them. मेरे को तो बहुत कुछ सीखने मिलता है इनसे। मेरे को स्ट्रेंथ सीखने मिलती है, मेरे को इनसे पेशेंस सीखने को मिलता है, करेज सीखने को मिलता है, डिवोशन सीखने को मिलता है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप कुछ करेंगे नहीं, आपका नाम भी नहीं होगा। आप सोचेंगे कि नहीं हमारे पास सब चीजें पॉजिटिव हो जाए, हमारा खुद से एक प्लेटफॉर्म बन जाए, हमें खुद से सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपने स्ट्रेंथ को समझ के खुद बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू इमर्ज आउट बाय योरसेल्फ एंड मेक योर पाथ। क्या आप में वो दम है कि आप अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के एक बैटल फाइट कर सको बिटवीन दी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ? क्या आप में वो दम है? सोचना पड़ेगा। सोचोगे तो करोगे, नहीं सोचोगे, हार मान जाओगे तो कुछ नहीं होगा। दो बातें बोलोगे, दो बातें सोसाइटी बोलेंगी, बात खत्म हो जाएगी। आपको उठाने पड़ेंगे ये चीजें फ्रॉम द इंडियन माइथोलॉजी कि हाँ, जब सीता जी अपनी लग्जरी छोड़ सकती हैं, सीता जी अपने पति के साथ चल सकती है, अपना एक स्टैंड रामायण में बना सकती है, तो व्हाई नॉट आई? एंड डोंट यू थिंक द होल रामायण वेंट टेकिंग द सीता इनटू द सेंटर? The whole Mahabharata went taking Draupadi into the center. The woman was the center of all the battles. And I salute all the male candidates who fought the battle. Today also, I salute all the male participants, all the male members who will support the other women, thinking as if the other woman is your friend, your beloved, your girlfriend, your sister, your mother alike, your sister-in-law, any of aspect. Help them. अगर आज आप एक विमेन की हेल्प करोगे, तो कल को आपकी बहन, आपकी सिस्टर इन लॉ को कोई हेल्प करेगा। इस बात को भी ध्यान दीजिए। अगर आपने आज वुमेन्स को उनका हक नहीं दिया, तो क्या होगा? आपको नहीं लगता आपकी ही सोसाइटी की वुमेन्स, आपके ही परिवार की वुमेन्स शायद अपने राइट्स नहीं ले पाए? तो हमें एज अ टीम वर्क करना है। इन इंडिया वी आर नोन फॉर इंटेग्रिटी। वी हैव सो मेनी रिलीजन्स टू फॉलो, बट वी आर एट लास्ट वन। Similarly, by gender, we might be different, but at large scale, we are one. We have to fight the battle together.
I would request all the people to support each other. I will request the male candidates to provide opportunities for the women in the upcoming future. Isn't it, Sugamji? Definitely, ma'am. Thank you so much. And I will end up the session by saying few lines. ध्यान दीजिएगा, जाते जाते अभी हम बहुत सीरियस हो गए हैं, जाते जाते बहुत ही हंसा के जाने वाली हूँ मैं. इस लाइन पे बहुत अच्छे से गौर कीजिएगा. राम ने तोड़ा धनुष तो सीता मिली, राम ने तोड़ा धनुष तो सीता मिली, अर्जुन ने चलाया तीर तो द्रौपदी मिली, अर्जुन ने चलाया तीर तो द्रौपदी मिली, कृष्ण ने बजाए मुरली तो राधा मिली, और आप लोग आए इस वेबिनार में तो मुझे बहुत खुशी मिली. Thank you so much. Thank you, ma'am. विनोद सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? रेज हैंड हुआ है. हाँ, कुछ नहीं बोलना, इनका धन्यवाद करना है केवल. ये वेबिनार में आए और इन्होंने काफी अच्छे तरीके से तीनों कैरेक्टर के बारे में सिमिलरिटी भी बताई. और एक जो चीज है वो ये है कि ये जो तीनों कैरेक्टर हैं, ये तीनों काफी प्यार करते थे अपने किसी भी चीज से, काफी प्यार करते थे. तीनों में एक सिमिलरिटी है और उसी प्यार के कारण इन्होंने हट किया और उस हट के कारण विजयी हुए. Right. Thank you, ma'am. Thank you for this beautiful session. Neha ji, sorry to interrupt. We also have CA Shilpi Kejriwal ji who has raised her hand. So Shilpi ma'am, you can say whatever you want to say. Hello. Firstly, thank you, ma'am, for a lovely session. We are really getting inspired from you and enjoying the session. And secondly, ma'am, I would like to ask a question. Like, do you think आज के ज़माने में अपने वो सीता माता से इंस्पायर्ड होके unnecessary without अपनी fault अपने को कोई punishment या लोगों की बातें या जो भी होता है, ऐसी छोटी punishments भी अपने को accept करनी चाहिए, because सीता माता की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें वनवास जाना पड़ा, बाद में जो उनको अकेले जाना पड़ा. तो आज के जमाने में क्या हमें उनसे इस टॉपिक पे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि अपनी गलती के बिना भी हम चुप रहें और अपनी गलती एक मान ले उसको? Thank you, and I'm really thankful to you, शिल्पी, कि आप सेशन एंजॉय कर रहे हो. मैं इस सवाल का जवाब आपको एक शब्द से देना चाहूंगी. द शब्द इज परसेप्शन. दिस इज द वे वी लुक एट द इंडियन माइथोलॉजी, द रामायण. ध्यान से सुनिएगा. आपने जो किस्सा मुझे सुनाया, आपने किस्सा जो मुझे बताया कि उन्होंने अपने आप को हार्म करके चीजें ली, मैं इस बात से आप सब लोग को ज्ञात करवाना चाहूंगी कि पल पल उनको ये हर्ट किसी और ने नहीं किया. ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट पे. वनवास के टाइम पे आदेश तो राम जी को ही हुआ था जाने का वनवास. वो तो उन्होंने अपना डिसीजन लिया कि नहीं, I will stood beside my husband in the trying time, in the hard times, मैं मेरे पति के साथ खड़ी रहूंगी. It was not the आदेश, but it was her choice. Secondly, the very second moment जब राम जी का वनवास टाइम फिनिश हुआ एंड अयोध्या में ये बातें उठने लगी, द क्वेश्चन वाज रोमिंग हियर एंड देयर अबाउट द चैस्टिटी, अबाउट द प्योरिटी ऑफ सीता मैया. द राम वाज इन डायलेमा व्हाट टू डू, बिकॉज ऑन वन हैंड ही इज द हस्बैंड, बट ऑन द अदर हैंड नाउ वो एक राजा भी थे. तो उनके लिए वो टाइम बहुत ही क्रूशियल था. और आपको ये बात पॉइंट करके मैं बताती हूँ, आपको ये पॉइंट नोट भी करना चाहिए. किसी ने उनको नहीं बोला कि आप अयोध्या छोड़ के चले जाओ. उन्होंने ही कहा कि पतिदेव स्वामी, मैं नहीं चाहती कि मेरे स्वामी को किसी कलंक से सोसाइटी में जाना जाए. मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के ऊपर किसी भी तरीके की कोई बातें बने. मैं चाहती हूँ कि मेरा पति एक रेस्पेक्ट से इस किंगडम के राजा बने रहें. For that respect by her choice, वो खुद अयोध्या छोड़ के वाल्मीकि आश्रम में अपने रही.
तो शिल्पी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर हमारे परसेप्शन है, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हुई, उनको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज्यादा उनको इंजरीज हुई, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। जबकि हम इसको ऐसे बोलेंगे कि उन्होंने तो मुश्किलों को आसान कर दिया अपने ऐसे लाइफ के कठोर डिसीजन लेकर, जो कि आई थिंक आज के जमाने में हमें लेने की जरूरत है। आप भी करके दिखाओ। अगर ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताती हूँ, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखते हुए क्वेश्चन पूछा। हमने बोला मेल कैंडिडेट से कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है, वेरी गुड। आप हमारी कैपेबिलिटी के दम पे हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए, वेरी गुड। मैं पूछती हूँ आज की विमेन्स से, क्या आप अपना 2 रोल अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती हैं? क्या आप अपने हस्बैंड्स, अपनी फैमिली के साथ साथ अपना एक अस्तित्व बना सकती हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, ये सीखिए आप उनसे कि उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया। शिल्पी जी, आई थिंक आपको आपकी बातें, मतलब आपको कुछ समझ आया होगा इन चीजों से, आपको कुछ शिल्पी जी आई थिंक उनका माइक डिसकंटिन्यू हो गया है, ऑडियो। चैट। हाँ, चैट में तो आई थिंक काफी कुछ लिखा हुआ है सुगम जी। हाँ, लास्ट शिल्पी जी का चैट है, मैम नॉट वनवास के टाइम, लव कुश के टाइम। हाँ, राइट, ओके। तो मैं ये बोलूंगी, हमेशा उन्होंने अपनी चॉइसेस में रखा, उनके ऊपर कुछ भी थोपा नहीं गया। थोपने वाला पॉइंट मेरे परसेप्शन में मुझे ऐसा नजर आता है। और इससे एक चीज और इमर्ज आउट होती है कि उठो, अपने परसेप्शन को चेंज करो। परसेप्शन चेंज कर लोगे तो मुश्किलें आधी हल हो जाएंगी। परसेप्शन चेंज करो। क्या आप में वो दम है कि आप चीजों को एक पॉजिटिव एंगल से देख सकते हो? सोचो, अगर किसी ने ऐसा किया, उसका क्या पार्ट होगा? तो हैव अ पॉजिटिव एंगल एज वेल। संजय जी कुछ बोलना चाहेंगे? तो पूरे जो प्रोग्राम उसका ही सार समझ में आया जी कि सर। प्यार करो तो राधा की तरह, त्याग करो तो सीता की तरह, और रिवॉल्यूशन लो तो द्रौपदी की तरह। ये इस तरह से एक नारी के अंदर में आज के दिन में होनी चाहिए। करेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए तीनों का मिला करके। बिल्कुल। और जाते जाते मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी शिल्पी जी के लिए खास तौर से। जानती हूँ राम बनना आसान नहीं, किंतु सीता सा कठोर होना भी कहां तक संभव है। जो युग युग में जली है अग्नि परीक्षा में, जो युग युग से जली है अग्नि परीक्षा में, उसे निर्बल समझना उसका ही अपमान है। तो ये जो लाइन्स है ये मुझे इतना इंस्पायर करती है, और आई थिंक शिल्पी जी को भी करेंगी कि हमें ना तो राम का कैरेक्टर भूलना चाहिए, ना सीता की कठोरता का कैरेक्टर समझना चाहिए, और आई थिंक उनके कैरेक्टर को हल्का ले लेना उनका ही अपमान कहलाएगा। और तो नेहा जी आपका कुछ व्यूज, कुछ बोलना है? अगर मेरा एक क्वेरी था, अगर राधा जी की कैरेक्टर कोई मिस इंटरप्रेट कर ले, कोई वुमन, और अपने ही मतलब पॉइंट्स में अड़े रहे, तो फैमिली के अगेंस्ट जाना, वो तो फिर पूरा मतलब खराब कर देना अपनी फैमिली को आज के डेट में। क्योंकि जो भी हो, सारा मतलब ब्लेम तो आजकल वुमेन पे ही जाता है, कुछ भी हो। तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? आई थिंक बोलना चाहते हैं इस चीज पे, कुछ याद आ रहा है उनको। सोसाइटी तो हमेशा से ऐसा ही हुआ है, बट हम लोगों को ये बदलाव करना है, कॉइन का अदर साइड भी देखना है। अभी तक हम लोग हमेशा से यही सोचते हैं कि सीता को इतना तकलीफ मिला है ड्यू टू
राम, लोगों का जनरल परसेप्शन यही है। द्रौपदी को भी तकलीफ मिला, बट क्या कि ये उनका चॉइसेस था और उन्होंने किस करेज के साथ इस चीज को फेस किया, उस चीज को सबको समझना है और आगे अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाना है। डेफिनेटली जो फीमेल है और मेल दोनों को एक साथ चलना है, कोई आगे भी नहीं और कोई पीछे भी नहीं, क्योंकि जनरल टेंडेंसी है कि हम लोग सोचते हैं कि लेडीज फर्स्ट, ठीक है वो एक, बट क्या होता है कि इस केस में क्या होता है, कभी बराबरी नहीं चाहते हम लोग, बताते हैं कि यू आर बैकवर्ड, दैट इज व्हाई यू आर कमिंग, वी आर सेंडिंग यू फॉरवर्ड। सर इक्वालिटी, सर इक्वालिटी, सर इक्वालिटी, आगे नहीं चाहिए सर, इक्वालिटी, दैट्स इट, एंड आई सपोर्ट दैट। यस नेहा जी। आई थिंक अब कोई क्वेरी या कुछ है नहीं। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई क्वेरीज नहीं है अभी, एंड किसी ने रेज हैंड भी नहीं किया है, सो वी शुड प्रोसीड फर्दर. So before concluding, we have a video which is prepared by our student. Okay. On basically the women of today. So I would like to share that video. Just a moment. आई थिंक ये वीडियो सबको काफी पसंद आया होगा. Yes, very well written by. I think I should congratulate to the CS student जिसने भी ये कविता लिखी है. I think उसने एक women के सारे phases, एक women के सारे aspects
उसने इस पोएम के जरिए हम सबके सामने रखे हैं। एंड आई थिंक मैम ये जो वीडियो है, ये जो रैपिंग है, ये रैप बनाया है, ये भी एक मेल ने बनाया है। तो आई थिंक अब हमारी मैंने एक जो सोच है, वो सोच अब चेंज की तरफ बढ़ चुकी है और ये चेंज काफी हो चुकी है। यस, एंड ये चेंज आपके इस वेबिनार से आई है, तो कुडोज टू यू। कुडोज टू एवरीवन प्रेजेंट इन दिस वेबिनार। सो आई थिंक ये वेबिनार सबको बहुत पसंद आया होगा। एंड गोइंग टू नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू I would ask Sanjana Bhavotia ji, our Sikasa committee member, to kindly deliver the vote of thanks. Honorable panelists, respected organizers, and all the participants, it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, Sanjana Bhalotia, on behalf of the Jamshedpur branch of CIRC of ICAI, extend a hearty vote of thanks to the session speaker, Ms. Sonali Jain, for her presence and for taking out her valuable time from her busy schedule. We are deeply enlightened by your speech, ma'am, where you mentioned so many things about the Indian mythology, the strength and confidence women possess, and how powerful women are, but they are unaware of their strength. The way you explained this topic is exemplary. Also, I would like to extend a special thanks to the branch chairman, CA Sanjay Goyal sir, and the committee members for inspiring us. I also wish to express my gratitude to the organizer of this wonderful session, CA Sugam Saraiwala sir. Thank you for having us here out on such an amazing topic. I am very grateful to the conveners for providing encouragement and support. I heartily thank all the participants for their active participation in this event. As no program can become successful with a single person, so I extend my big thanks to this and support to the backend and IT department for their support. Thank you all for making this event a successful one. Over to you, Sugam sir. Thank you, Sanjana. So now time for sign off, but we believe that we will meet again soon. Yeah. On. I'd like to say something, Sugam sir. Yeah. I think this is a great platform to say this. I would like to take the initiative that anyone present over here, any women, any girl, anyone, if they feel any kind of problem, any kind of thing going inside their mind, please feel free to connect with me. I am free for you. Anytime you can connect to me and share your problems, anything. Thank you so much for everything the God has given to me, and I would like to share every aspect of that to each and every woman besides me. Thank you so much. Thank you, Thank you, ma'am. Sonali ji. It was awesome and very wonderful. Thank you. Thank you. Thank you everyone for your presence. Now time to sign off. Thank you everyone.